Good morning, class. So we'll continue with exercise 9.2. We have done till question number 10, but we have left question number 9. So we'll do question number 9 first and then we will continue. Clear? So just read question number 9. What is question number 9? Question number 9 is the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 and 9n plus 6. What it is? They are saying the sum of n terms of two arithmetic progressions. Question number 9. Sum to. Please mute yourself. Please mute yourself. Otherwise, there will be disturbance, class. Yes, what happened? There is some disturbance. Please mute yourself, everyone. Sujal, please mute yourself, beta. Mute yourself, everyone. Sum to n terms. They are saying the sum to n terms of two arithmetic n terms. The sum to n terms of two arithmetic progression are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6. They are saying the sum to n terms of two arithmetic progressions. So we are having how many arithmetic progressions? We are having two arithmetic progressions. So just see, let the first arithmetic progression is having the first term as a1 and the common difference as d1, and the second term is having the, just see, sn1. n terms ही है ना, तो sn ही लेना पड़ेगा अपन को, है ना. sn is equal to n upon 2 because sum to n terms है n upon 2 2a1 plus n minus 1 into d. लिख सकते हैं ना ये sn, ये आपका फर्स्ट है, ठीक है. ये s1n कर दो या तो, ठीक. और दूसरा क्या है, ये s1 है, s1 ले लो, s2 ले लो. सम ऑफ टू, वी आर हैविंग व्हाट, टू सीरीज वी आर हैविंग, टू एपीज है, तो दो एपी है तो उनका सम भी डिफरेंट होगा. क्लियर? बिकॉज जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, number of terms same hai. Sum to n terms of two arithmetic progression, that means the number of terms is the same. Yeah, so the next will be what? Just see, n upon 2 2a2 plus n minus 1 into d2. Yeah, these are the two arithmetic sum of two arithmetic progressions. So according to the question ATP, according to the question, what we are having, s1 upon s2 is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. Is this much clear? Question के according हमें क्या बोला गया है? We have been given the sum of first arithmetic progression is to the sum of second arithmetic progression is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. This is given. Clear? So what we are going to do? We have to divide these two. Clear? इन दोनों को s1 by s2 की वैल्यू रख देंगे. यहाँ s1 s2 है ना, इनकी वैल्यू रख दीजिए आप. तो क्या हो जाएगा, n upon 2 2a plus n minus 1 into d1 divided by n upon 2, ये 2a1 है, 2a2 plus n minus 1 into d2 is equal to 5n plus 4 upon 9n plus 6. नाउ हमें करना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स. हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 18th टर्म्स. डू यू नो व्हाट इज 18th टर्म? एनीवन हु कैन टेल मी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक. व्हाट इज द 18th टर्म? यस, एनीवन? व्हाट इज द 18th टर्म? व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन 18th टर्म? यस, एनीवन? A plus 17. यस, आई कांट हियर. A plus 17D. A plus 17D. So you all know that. Again, I am writing here 18th term is what? 18th term means A plus 17D. Now A1 plus 17D1 और A2 plus 17D2 यही होंगे 18th term. अब आप देखो इसमें n by 2 cancel out हो गया. Why? Because क्या है?
n/2 क्या है, सेम है दोनों में। अब मैं अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे रब कर देती हूँ n/2 so that there should not be, you should know that this has been cut, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप इसको हटा देंगे। अब आप देखो, just see the step, if I divide this whole numerator and denominator by 2, can we do it? क्या हम कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड? यस वी कैन। सो क्या हो जाएगा, 2a1 अपॉन 2, 2a1 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, a1 प्लस n माइनस 1/2 d1, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया। ये क्या किया इस स्टेप में हमने, डिवाइड द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय 2। अब आप देखो ये क्या बन गया, a1 प्लस n माइनस 1/2 d1, a2 बाय ये 2 तो कैंसिल आउट हो गया है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, a2 प्लस n माइनस 1/2 d2। ये स्टेप समझ में आया? दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप। I had just divided the whole equation by 2 in the numerator also and denominator also. अब मैं अगर ये बोलूं कि a1 प्लस 17 d1, ये वैल्यू अगर n माइनस 1/2, n माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ मैं, 17। तो अगर मैं 17 लूंगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 17d हो जाएगी ना, a1 प्लस 17d1। तो मैं मुझे n की वैल्यू निकल जाएगी, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34। सो n इज इक्वल टू, ये 2 इधर गया, 17 2 34, so n is equal to 34 minus 1 will go that side, 35. Is this clear? n is equal to 35 is clear? यहाँ से अपना क्या निकल जाएगा, this implies n is equal to 35. If it is not clear, please ask. You can unmute yourself and ask. This is an important step. Why we have done? Because we have to find the 18th term. हमें 18th term निकालनी है और हमें पता है 18th term क्या होती है, a plus 17d। अब आप इसको देखो, a1 plus 17d1 का फॉर्म हो सकता है ना ये, अगर मैं इस वैल्यू को 17 से इक्वेट कर दूं, ठीक है, तो मैंने वही किया, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 17, so n minus 1 is equal to 34, n is equal to 35. Clear? तो फ्रॉम हियर वी गॉट द वैल्यू ऑफ, ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने n की वैल्यू अगर 35 रखती हूँ तो ये 17d1 हो जाएगा, तो ये हो गया a1 प्लस 17d1 विजिबल है अपॉन a2 प्लस 17d2। इज इट विजिबल? क्लियर? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 35 रख दो, 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 35 प्लस 4, इट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर हो गया, इसको कैलकुलेट कर लो, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 5 15 16 17, 175 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45, 5 4 कैरी 9 3 जा 27 27 31 315 प्लस 4। तो आंसर क्या आ गया, 179 बाय 31, सॉरी ये 6 है, सॉरी ये 4 नहीं है, ये 6 है, तो ये प्लस 6 आया, तो 315 प्लस 6 कितना होता है, 321, 179 by 321. Your answer will be what, 179 by 321. If it is not clear, please ask, because it's an important question I am telling you. And we have done till question number 10. Now come to question number 11. Is it clear, everyone? Come to question number 11. What is it? They are saying sum of the first PQR terms of an AP are ABC respectively. Sum of first PQR terms of an AP are ABC respectively. Question number 11. Sum of first P terms is equal to A. Sum of first Q terms is equal to B. Then sum of first R terms is equal to C. ये given है अपन को, है ना, sum of first P terms, sum of first Q terms and sum of first R terms of an AP are A, B, C respectively. Now what you have to prove is, you have to prove A upon P Q minus R plus B upon Q R minus P and plus C upon R
p minus q is equal to 0. This we have to prove. Clear? ये आपको प्रूव करना है. Now just see हमें वैल्यूज क्या चाहिए, a by b चाहिए, b by q चाहिए, c by r चाहिए, उसके बाद हमें सिर्फ खोलना है. तो what we can do, sum of first p terms को हम और कैसे लिख सकते हैं, ये first p terms को हम क्या लिख सकते हैं, n upon 2, sorry p upon 2 लेंगे ना, sum of p terms है तो p by 2 2a plus p minus 1 into d. ठीक है ना, इज इक्वल टू ए. अब यहाँ ए दिया हुआ है तो कंफ्यूज मत होना, a1 ले लो आप, a1 d1 ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. क्लियर? बिकॉज यहाँ a आ रहा है. ठीक. सेकेंड है q by 2 2a1 प्लस q minus 1 into d1 इज इक्वल टू b. यहाँ a1 d1 दोनों में a1 d1 क्यों लिखा है, बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट p टर्म सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स की बात कर रहे हैं. ap इज द सेम, ap इज नॉट डिफरेंट. अगर ap सेम है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा. तो मैंने a और d की जगह a1 d1 लिया ताकि यू विल नॉट गेट कंफ्यूज विद दिस a हियर. क्या? देन नेक्स्ट इज r by 2 2a1 plus r minus 1 d1 is equal to b. क्लियर? सॉरी c. क्लियर? ये दिया हुआ है. अब इससे हमारा क्या निकलता है, a by p की वैल्यू निकल जाएगी. हमें यहाँ क्या चाहिए, a by p की वैल्यू चाहिए ना. a by p की वैल्यू क्या हो गई, दिस इंप्लाइज a upon p is equal to 2 से पूरी को डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, a1 plus p minus 1 by 2 d1. यहाँ पे b by q, ये q अपन क्या ले आए, b के नीचे ले आए. ठीक है, 2 आपको उधर ले जाना है, उधर ले जाओ, नहीं तो 2 को अपन पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे. तो b by q is equal to 2 से डिवाइड कर दो, इट विल बी a1 plus q minus 1 by 2 d1. c by r is equal to a1 plus r minus 1 by 2 into d1. ठीक है, ये आपकी 3 इक्वेशंस हो गई. टेक दिस एज 1 2 3 और ये ले लो 4th इक्वेशन जिसको अपन को प्रूव करना है ना. अब पुट द वैल्यू ऑफ a by p, b by q, c by r in this equation. Put a by p, put the value of a by p, b by q and c by r in from first, second, third in equation 4. बस करना क्या है आपको, ये जो वैल्यू a by p, b by q, c by r की वैल्यू अपन को कहाँ डालनी है, a by p की वैल्यू यहाँ डालनी है और ओपन अप करना है into q minus r. अब ये टर्म multiplied by q minus r, it will be a very big multiplication. So try to do it by yourself. If you won't be able to, then I will explain. करना कुछ नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सबको आता है. हमें क्या करना है, सिर्फ a by p की वैल्यू यहाँ रखनी है, a1 plus p minus 1 by 2 d1. ये एक वैल्यू रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय q minus r प्लस b by q की वैल्यू रखी मल्टीप्लाइड बाय r minus p प्लस c by r की वैल्यू रखी मल्टीप्लाइड बाय p minus q. And you have to open up the brackets. When you will open up the brackets, you will see all the terms will get cancelled out. सारी टर्म्स क्या होंगी, एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, एक प्लस में होगी, एक माइनस में होगी, एंड ऑल द टर्म्स विल गेट कैंसल आउट एंड यू विल गेट द आंसर एज 0. आपका आंसर आ जाएगा RHS 0. So I think so you can do it this much. Clear? So come to the next question, question number 12. Question number 12 is, again this is important, the ratio of sum of m and n terms. Same question अपन ने question 9 में किया था, उसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है. तो come to question number 12. They are saying sum to m terms and sum to n terms of an AP. The ratio of sum of n terms and m terms of an AP is, according to question number 12, sum of m terms divided by sum of n terms of an AP. Of an AP का मतलब क्या है, दोनों AP सेम है, दोनों APs क्या है, सेम है. तो sum of m terms to sum of n terms
ऑफ एन एपी इज, एक एपी का क्या है, एम स्क्वायर अपॉन एन। आप लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस था। डिफरेंस क्या था, उसमें थी दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें सेम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सम ऑफ m टर्म्स एंड सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, सॉरी, सम ऑफ m terms and sum of n terms of n arithmetic progression. N arithmetic progression means here the arithmetic progression is the same. So the value of a and d for both of them will be the same. So हम क्या लिख सकते हैं, sum of m terms क्या होगा, m upon 2 2a plus m minus 1 into d upon sum of n terms क्या होगा, n upon 2 2a plus n minus 1 into d is equal to m square by n square। ठीक है, हो गया ये, है ना। अपन को ये प्रूफ करना है कि सम ऑफ, क्वेश्चन क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म। तो हमें प्रूफ क्या करना है, am अपॉन रेशियो ऑफ mth टर्म टू nth टर्म, ये है ना, रेशियो ऑफ mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m minus 1 2m minus 1 अपॉन 2n minus 1, ये टू प्रूव है। ठीक है, ये अपन को गिवन है, दिस थिंग इज व्हाट, दिस इज गिवन। अब ये गिवन है अपन को, क्लियर। नाउ जस्ट सी, m इधर भी है, m इधर भी है, m/2 ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमने हटा दिया इसको। ठीक, तो बचा क्या, यहाँ पे m, यहाँ पे n, ये m इससे कैंसिल आउट हो गया, ये m इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू यहाँ क्या बची, m/n। ठीक है, बचा क्या है यहाँ पे, m/n, और बाकी सब कैंसिल। नाउ यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है ना। ठीक है, ये वाला n की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, n टाइम्स 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m टाइम्स, ये वाला टर्म मैं उधर ले गई, m टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Clear? Now just open up the bracket, 2an plus n से मल्टीप्लाई कर दो, d से मल्टीप्लाई कर दो, nmd माइनस n इंटू d इज इक्वल टू 2am प्लस mnd फिर m और d माइनस 1 माइनस md। क्लियर, ये ओपन अप हो गया ब्रैकेट। नाउ जस्ट सी दिस nmd here कैंसिल आउट, दोनों पॉजिटिव में है, उधर ले जाऊंगी तो माइनस mnd हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ 2an है, यहाँ 2am है, तो उसको आप a वाली टर्म्स को एक तरफ कर लो और बाकी टर्म्स को एक तरफ कर लो। तो मैं m को इधर ले आती हूँ, md, ये माइनस md था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस md माइनस nd इज इक्वल टू 2am माइनस 2an। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से d कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, m माइनस n टाइम्स d इज इक्वल टू 2a कॉमन ले लिया, 2a टाइम्स m माइनस n। ठीक है, तो m माइनस d, यहाँ पे भी m माइनस है, ये m माइनस n माइनस कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 2a। द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू व्हाट, 2a, ये अपना निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, जस्ट सी, वी हैव टू फाइंड am by an। तो LHS से चालू करते हैं, व्हाट इज am, mth टर्म, व्हाट इज mth टर्म, a प्लस m माइनस 1 इंटू d, a प्लस m माइनस 1 इंटू d, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस, सॉरी, n माइनस 1 इंटू d, ये mth टर्म है, ये nth टर्म है। अब यहाँ देखो d की वैल्यू क्या है, 2a, जस्ट वैल्यू पुट कर दो 2a, d की वैल्यू 2a पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू 2a डिवाइडेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू 2a। ठीक है, d की वैल्यू हमने क्या रख दी, 2a। अब ओपन अप द ब्रैकेट, क्या हो जाएगा, इधर देखो, a प्लस 2am माइनस 2a अपॉन a प्लस 2an माइनस 2a। ठीक है, ये आ गया। आई एम रबिंग दिस साइड।
इसी को अपन यहाँ एक्सटेंड कर देते हैं। अब ये देखो a माइनस 2a कितना होगा, माइनस a, तो क्या आ जाएगा माइनस a प्लस 2am अपॉन माइनस a प्लस 2an। ठीक है, क्लियर है। अब आप a कॉमन ले सकते हो, इस टर्म में भी a है, इसमें भी a है, तो हमने a कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2m माइनस 1, 2am प्लस में है 2am पॉजिटिव माइनस a माइनस 1 इंटू a, मैंने जस्ट टर्म को रीअरेंज किया, नथिंग एल्स, डिवाइडेड बाय इज इट विजिबल, नॉट विजिबल, मैं यहाँ दिखा देती हूँ आपको। ये आपने कॉमन लिया, इस टर्म में कॉमन लिया a, तो आपका बचा 2m माइनस 1। इस नीचे वाली टर्म में आपने कॉमन लिया अगेन a कॉमन लिया, तो अपने पास क्या बचा 2n माइनस 1, ये a कैंसिल, आ गया अपना 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 इज इक्वल टू RHS रूट। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? देन कम, yes, anyone having problem please? Yes, Palash, anyone having problem please ask. Yes, no problem. Okay, then come to question number 13. If the sum of n terms of an AP is given, if the sum of n terms of an AP is given, बेटा are you doing the exercise, all the questions in your notebook? जितना भी अपन ने किया है उसको नोटबुक में करते चलो, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना, एंड रिकॉर्ड भी मेंटेन रहता है। Yeah, anytime they can ask you to give the notebook, submit the notebooks for checking and all, सीलिंग के लिए भी आ सकता है, इसलिए do your work whatever we have done. So question number 13 is, if the sum of n terms of an AP is, sum of n terms of an AP is given as 3n square plus 5n, 3n square plus 5n. Now they are saying, and the nth term is 164. nth term कितनी है 164. Now they are saying find the value of m. क्या करना है अपन को, find m and the mth term, ये mth term दे रखी है, nth नहीं mth term दे रखी है आपको, क्लियर, and find m. तो आप देखो इधर Sn आपको दे रखा है, An आपको दे रखा है, ठीक है। mth टर्म का मतलब क्या होता है am, है ना, mth टर्म का मतलब क्या है am 164 है। Sn आपको दे रखी है, मैंने आपको बताया था Sn दे रखी है तो S1 अपन निकाल सकते हैं, S1 मतलब सम ऑफ वन टर्म्स, तो वन वैल्यू रख दो इधर, 3 into 1 square 3 plus 5 into 1 5, that is equal to a. So S1 is equal to 1 which is equal to what, A1, the first term, clear। A1 पता है, सेम वे A2 निकाल सकते हैं हम, S2 is equal to what, A1 plus A2, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, which is equal to A1 की वैल्यू क्या है 8, हमने अभी निकाली, A1 is 8 plus A2, and S2 can be also find out, we can find out the value of S2 with this equation, n की वैल्यू 2 रख दो, तो यहाँ क्या आ गया 3 into 2 square 3 4s are 12 plus 5 into 2 10 is equal to 8 plus A2, ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन में किया था, तो क्या हुआ 10 प्लस ये हो गया 22 माइनस 8 इज इक्वल टू A2, तो 22 माइनस 8 कितना हुआ 14 इज इक्वल टू A2, A2 की वैल्यू क्या आ गई अपनी 14, A1 की वैल्यू क्या आ गई 8, हमें पता है A1 और A2 की वैल्यू, तो हम D निकाल सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D नाउ, D is equal to A2 minus A1 which is equal to 14 minus 8 which is equal to 6, तो D की वैल्यू क्या हो गई हमारी 6, हमें क्या पता है A1 पता है, D पता है, ठीक है। सो mth टर्म क्या होती है am is equal to a plus n minus 1 सॉरी m minus 1 into D, ठीक है। am क्या होता है, हमें m की वैल्यू निकालनी है ना, तो am is a plus n minus 1 into D, a की वैल्यू डाल दो, D की वैल्यू डाल दो, m तो अपने आप निकल जाएगा, am की वैल्यू क्या दी 164 is equal to the value of A1, A1 क्या है, A1 is from here 8 plus m minus 1 into D is what 6, now just solve the equation, 164 minus 8
8 will come this side, minus 8, m minus 1 times 6. So 164 minus 8 is what? 156. होगा 156 is equal to m minus 1 और ये 6 को डिनोमिनेटर में ले आए, ठीक है, ये 6 क्रॉस मल्टीप्लाई होके नीचे आ गया, तो 6 2 जा 12, 13, 14, 15, 6 6 जा 36. m minus 1 is equal to 26, so m is equal to what? 27. So this is your answer. M is equal to 27. Is that clear, everyone? Then come to question number 14. Now I haven't told you about arithmetic mean. What is arithmetic mean? I'll explain you. You know the meaning of mean? What is mean of two numbers? अगर हमारे पास दो numbers हैं A और B, who will tell me the meaning of mean? What is the mean of A and B? Anyone who can explain? Mean पढ़ा है कभी? Yes. A plus B upon 2. Very good. Upon what? 2. Very good, very good. Just mute yourself. Now we will talk about arithmetic mean. अभी तो आपने mean पढ़ा था, अब हम arithmetic mean पढ़ेंगे. What is arithmetic mean? Arithmetic mean, suppose if we are having two numbers in AP, we want to insert a number C here. We want to insert a number in between these two numbers. We want to insert a number C between A and B so that this will be an AP. So that this sequence is an AP. मुझे C एक ऐसा नंबर इंसर्ट करना है इसके बीच में ताकि ये AP हो. तो मैं क्या बोलूंगी? C minus A is equal to B minus C. तो क्या हो जाएगा? C, ये C यहाँ ले आओ, C plus C, 2C is equal to A plus B. So C is equal to what? A plus B by. Clear? ये तो सिर्फ हमने एक नंबर इंसर्ट किया. सपोज मैं कहूँ मुझे A और B के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स लगाने, मतलब A1, A2, an अरिथमेटिक मीन्स लगाने, ठीक है. तो जब आपको an अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं तो अपन क्या करेंगे? तब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस a अपॉन n प्लस 1. n ये ध्यान रखो, ये देखो n अरिथमेटिक मीन्स है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. अब ये हमें n अरिथमेटिक मीन्स इस तरह से लगाने कि ये क्या बन जाएगी? AP बनानी है, ठीक है. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? d की वैल्यू हो जाती है b माइनस a. जिन दो नंबर्स के बीच में हमें लगाना है b माइनस a अपॉन n प्लस 1, वेयर n इज व्हाट? द नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन्स वी वांट टू इंसर्ट. हमें कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने, वो होती है n की वैल्यू, ठीक है. तो हमारा d निकल गया, a हमें पता ही है, तो a1 क्या हो जाएगा? a1 की वैल्यू क्या होगी? ये a है तो ये क्या होता है? a प्लस d. तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस d. d की वैल्यू क्या है? b माइनस a अपॉन n प्लस 1. a2 क्या हो जाएगा? a प्लस 2d. अब आप बोलोगे जनरली तो मैम आप सेकेंड टर्म को a प्लस d बोलते हो. अब ये सेकेंड टर्म नहीं है, ये देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है. हमें तो ये इंसर्ट करने हैं इन दोनों के बीच में, तो ये भी तो एक टर्म है, ठीक है ना. तो एक्चुअली तो ये थर्ड टर्म है, पर हम इसको, क्योंकि हमें अरिथमेटिक मीन कितने इंसर्ट करने हैं तो हमें A2, हमने नाम उसको दे रखा है A2. तो A2 क्या हो जाएगा? A plus 2D which can be written as A plus 2 times B minus A upon N plus 1. Clear? Clear? Is that clear? Arithmetic mean. What is arithmetic mean? Clear, everyone? So it's time actually. We'll do question number 14, 15, 16, 17, 18 tomorrow because it's time now. We won't be able to do it. Thank you, class.